Namaste, welcome to shailaji.com and I am Shaila Vasunath. Today I'll be doing a Hindi video and not English, and this video is exclusively for 10th board exam students, and I'll be focusing on the strategies to read and also the writing skills, blueprint and time management and all that. Now all this cannot be done in just one video, so I'll be taking it into many segments. It will be short videos but many. I'll be doing a couple of videos for you to understand well. So each video will take one particular topic, and in that topic we will be concentrating on the details of what is needed for you. Now इट विल बी बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब बाइलिंगुअल में होगा, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे लोग ये प्रश्न पत्र के संबंध में बात करेंगे और पूरी तरह से हिंदी में होता है. द एक्सप्लेनेशन इज ऑलवेज इन हिंदी. Yes, that's right. But then we need to think about the South Indian students also, who need to understand completely in that Hindi. Yeah, we do teach in Hindi, but still, for them to make it more simpler and easier to understand, to score marks. See, our motive is they have to score good marks. So for that, we are taking effort to explain both in Hindi and English. So it will be very easy. In this particular video, I would like to focus on the blueprint of your question paper, particularly that the time management and also the marks for each question, how many marks it would have and what are the choices, विकल्प कितने होंगे, एक एक प्रश्न के लिए कितने खंड होंगे, और मतलब इसमें ये तो आप लोगों को पता है कि यह सब्जेक्टिव है, दैट इज गद्य, पद्य, संचयन और संचयन और लेखन कौशल, दैट इज राइटिंग स्किल्स. तो राइटिंग स्किल्स में 5 स्टेप हैं, तो वो सब इसमें करेंगे, लेटर राइटिंग एंड ऑल दैट, लघु कथा, अनुच्छेद एंड ऑल दैट. सो ऑल दैट you will be focusing gradually. In this, the explanation will be particularly about the marks, the choices and the full question paper from which areas it has been asked. So concentrate well, understand it. In case you have some doubt, you're not able to understand, or you have some doubt in what we have done in this particular video, you can put it in the comment box, so that when we are doing the next video, that time we will be explaining to you and we will try to clear your doubts. Next video will be on sample paper, and that sample paper will be taken again into a couple of videos to explain about Gadya, Padya, Sanchayan and Lekhan Kaushal. So we'll be doing it, but this will be particularly on your main blueprint topic. So don't miss to watch it till the end. I hope you would benefit. So अभी जाएंगे वीडियो देखने, चले. नमस्कार, मैं फिर से कविता आपके सामने पेश करने आई हूँ. CBSE कक्षा 10 द्वितीय सत्र के लिए पोर्शंस, पैटर्न और थोड़े से टिप्स, सैम्पल पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगी. पोर्शंस जो है द्वितीय सत्र के लिए 40 अंक के हैं. स्पर्श भाग 2 के पाठ हैं. गद्य में पतझर में टूटी पत्तियां, झेन की देन, फिर कारतूस, और उसके बाद पद्य में है मनुष्यता, पर्वत प्रदेश में पावस, कर चले हम फिदा. संचयन भाग 2, उसमें हरिहर काका, सपनों के से दिन, टोपी शुक्ला. फिर लेखन कौशल में अनुच्छेद, औपचारिक पत्र, सूचना, विज्ञापन, लघु कथा, लेखन. और उसके बाद जो है ब्लूप्रिंट आपके स्पर्श संचयन भाग में से 14 अंक और लेखन कौशल 26 अंक. यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका विवरण मैं आगे दूंगी कि गद्य, पद्य और संचयन में से 14 अंक और लेखन कौशल जो है 26 अंक. तो इसका विवरण मैं आपको एक एक करके दूंगी. तो खंड ख, इसमें प्रश्नोत्तर है. तो प्रश्नोत्तर गद्य भी हो सकता है या पद्य भी,
3 में से 2 आपको उत्तर लिखने पड़ेंगे गद्य या पद्य में से. इट कैन बी प्रोज और पोएट्री. चॉइस 2 आउट ऑफ 3. 2 + 2 4 मार्क्स. और दूसरा प्रश्न, 2 में से एक उत्तर, तो 60 to 70 words you have to write one answer. इट कैन बी आइदर प्रोज और पोएट्री, या गद्य या पद्य किसी में से भी हो सकता है, या दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी हो सकता है. 4 अंक, 4 मार्क्स. थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम संचयन और योर नॉन डिटेल टेक्स्ट बुक. तो प्रश्नोत्तर 2 में से आपको 3 में से 2 लिखने पड़ेंगे, और 40 to 50 words you have to write 2 questions. 3 + 3 6 marks. खंड ख, लेखन कौशल. इसमें फोर्थ क्वेश्चन, तो अनुच्छेद पैराग्राफ राइटिंग 150 वर्ड्स, 150 शब्दों में लिखने होंगे आपको. तो 3 दिए जाएंगे जिसमें से आपको 1 लिखना होगा, और इसका अंक विभाजन इस तरह है. द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द आंसर्स व्हेन इट्स करेक्टेड इज लाइक दिस. सो भूमिका 1 मार्क. इंट्रोडक्शन 1 अंक. विषय वस्तु 4 अंक. सो द सब्जेक्ट मैटर विच यू राइट 4 मार्क्स. भाषा लैंग्वेज 1 मार्क, 1 अंक. तो ऐसे जो है 6 अंक. तो आप 1 या 1.5 पन्ना अगर लिखेंगे तो सही बैठेगा. उसके बाद 5वां प्रश्न, द फिफ्थ क्वेश्चन इज योर फॉर्मल लेटर. सो यू हैव पत्र हियर. 120 शब्दों के लिए आपको पत्र लिखना होगा, औपचारिक पत्र, और उसके लिए आपका अंक विभाजन होगा 1 अंक. आप जो औपचारिकताएं लिखते हैं, आरंभ और अंत, आप जैसे शुरुआत करते हैं, दिनांक लिखते हैं, मान्य महोदय लिखते हैं, उसके बाद अंत में, उनके लिए सब कुल मिलाकर 1 अंक. फिर विषय वस्तु, जो सब्जेक्ट मैटर जो है, फॉर दैट यू हैव 3 मार्क्स. भाषा शुद्धता, फॉर लैंग्वेज यू हैव 1 मार्क, 1 अंक भाषा के लिए. ये भी जो है विकल्प है 2, और उसमें से आपको 1 लिखना पड़ेगा. फ्रॉम 2 you have to write 1. Then the 6th question, सूचना लेखन, you have to answer 2. 2 लिखने पड़ेंगे आपको 50 शब्दों में. और सूचना के लिए सबसे प्रमुख बात है कि आपको एक चौकोर या डब्बा, you have to put a box and then write in it. और इसमें आंतरिक विकल्प है इंटरनल चॉइस. इंटरनल चॉइस का मतलब क्या है? व्हाट इज इट? इंटरनल चॉइस क ख, यू हैव 2 पार्ट्स, 2 भाग होंगे क ख. तो क भाग में 2 प्रश्न होंगे. 2 क्वेश्चंस विल बी देयर इन क भाग, एंड फ्रॉम दैट यू हैव टू राइट 1. तो उसमें से 1 को चुनना पड़ेगा, 1 का उत्तर लिखना पड़ेगा जिसके अंक है 2.5. तो द मार्क्स आर 2.5. द सेम वे, उसी तरह दूसरा जो है ख है, जिनमें से आपको 1 लिखना पड़ेगा, 2 में से 1, और उसके अंक है 2.5. अगेन 2.5. फ्रॉम 2 यू हैव टू राइट 1. एंड द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, अंक विभाजन है, औपचारिकताएं, ऑल द फॉर्मेलिटीज. जो भी आप सूचना लेखन ऊपर लिख रहे हैं, यू राइटिंग द वर्ड सूचना ऑन टॉप. यू फिर डेट, दिनांक लिख रहे हैं, उसके लिए आधा अंक. फिर भाषा, द लैंग्वेज, एंड विषय वस्तु, वॉट एवर सब्जेक्ट मैटर यू राइटिंग, उसके लिए आपको 1.5 अंक. तो कुल मिलाकर 2.5 अंक. ऐसे ही दोनों के लिए कुल जो है 5 अंक, 2.5, 2.5, 2.5, दैट बिकम्स 5. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विज्ञापन लेखन. अगेन ये जो है 50 मार्क का है, 50 शब्दों में लिखना पड़ेगा, और यह कुल जो है 5 अंक का है. 2 लिखने पड़ेंगे आपको. फिर से आंतरिक विकल्प है यहाँ पर, 2 में से 1, 1 out of 2 you have to write, and the same way second one, 2 में से 1, 1 out of 2. तो 2.5 मार्क, 2.5, 2.5 marks each. And the mark distribution, विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर 1, प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन 1, भाषा लैंग्वेज हाफ. सो 2.5, 2.5, it becomes 5. 5, 2.5, 5 मार्क का. उसके बाद है
अंतिम प्रश्न, द लास्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, लघु कथा लेखन, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, 120 वर्ड्स, 5 मार्क्स, 5 अंक। यहाँ पर भी 2 आएंगे, 2 में से आपको 1 लिखना पड़ेगा, 1 आउट ऑफ 2। सामान्यतः जनरली यू हैव अ टाइटल, एक शीर्षक दिया जाएगा जिसके आधार पर आपको कहानी बुनकर लिखना पड़ेगा। टाइटल विल बी गिवन बेस्ड ऑन विच यू हैव टू राइट द आंसर और यू हैव टू मेक अ स्टोरी एंड राइट इट। अंक विभाजन, the mark distribution goes like this: विषय वस्तु 2 marks, subject matter 2, प्रस्तुतिकरण that is presentation 2 marks, presentation includes your imagination, आपकी जो कल्पना शक्ति है उसके आधार पर आपको 2 अंक, फिर भाषा शुद्धता के आधार पर 1 अंक, your language skill according to that 1 mark. सो दिस इज इट विद द ब्लू प्रिंट, यही ब्लू प्रिंट है। यहाँ पर भाग 1 खत्म हो रहा है, द पार्ट 1 इज गेटिंग ओवर। धन्यवाद, थैंक यू।